Hello everyone, I'm your Vishal Chabra. Welcome to my YouTube channel. Today we will start with our next topic, motion in straight line, chapter 3rd, class 11th. हाँ जी, सब तो पहला ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? What is motion? ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। अर्थ का चलना, मून का अराउंड अर्थ ते घूमना, हर एक चीज मोशन है। यूनीवर्स अराउंड सारा कुछ की मोशन दे विच चलदा रहिंदा है। सो सब तो पहला मोशन की डेफिनेशन ना क्लियर करते हैं। व्हेन अ बॉडी changes its position, when a body changes its position with respect to time। हाँ जी, what is motion? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਸ਼ਨ। ਸਪੋਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ, हाँ जी, ਐਨੀ ਏ ਬੋਡੀ, ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ 1 PM। कुछ टाइम बाद सपोज 1 आवर 2 आवर 3 आवर सपोज अपन लगा लेते हैं 5 PM। बॉडी की पहुंची जी ए बॉडी सी इस जगह तक की होगी ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। दैट मींस ए बॉडी की होगी अपनी पोजीशन चेंज कर ली विद रिस्पेक्ट टू टाइम के नाल, ते की मोशन हो गया जी। इस चीज तक की हो गया मोशन हो गया। हाँ जी, ਕਰਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰੈਸਟ ਦੀ। ਰੈਸਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਸਟਿਲ ਹੈ, ਖੜੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, when an object or a body doesn't or cannot change its position with respect to time। हाँ जी, कोई बॉडी सपोज आप बॉडी एनी बॉडी एक मैनू 1 PM से देखियो ਇੱਥੇ ਸੀ, आफ्टर 1 आवर देखिया ਇੱਥੇ ही है, 2 आवर देखिया। दैट मींस ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬॉडी ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ नहीं चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम ਦੇ ਨਾਲ। टाइम इंक्रीज हो रहा है बट बॉडी के स्टिल है। दैट मींस वो बॉडी की है रेस्ट पे है। हाँ जी, रेस्ट ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਰੈਸਟ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਔਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਟਾਈਪਸ ਦਾ, 1 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ, 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ, 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ। हाँ जी, 1 डायमेंशनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਬਾਈਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, x y z। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ x ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ y ਦੇ ਉੱਤੇ और z ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੁਲੇਟ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 2 ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਪੋਜ਼ xy, yz ਜਾਂ zx, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ पोर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ट्रैवल करना, काम करना। सपोज कोई कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, राउंड 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 घूम रहा है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੀ x ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ y ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ, ਆ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ x ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ x ਦੇ ਨਾਲ, तो ऊपर वाली चीज भी चेंज हो रही है, y भी चेंज हो रही है। दैट मींस एक ही चीज होगी प्लेनर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ, 2 डायमेंशनल होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ਤੁਹਾਡਾ 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਬਰਡ। स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਰਡ, प्लेन ਦਾ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ,
ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਬਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੋਣਗੇ x y z, ਤੇ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰਾ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ 1 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਕਾਈਨੈਮੈਟਿक्स बोलते हैं। काइनेमैटिक्स, काइने मीन्स मोशन, मैटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स, मैथ। मतलब जो भी चीज फाइंड करना, किसी दी लेंथ फाइंड करनी, किसी दा डिस्टेंस फाइंड करना, किसी दी स्पीड, वेलोसिटी, एनीथिंग फाइंड करना किदे नाल, कैलकुलेशन दे नाल मैथमेटिक्स हो गया जी। मोशन दा किसी भी कैलकुलेशन नाल फाइंड करना, उन्होंने की कहता ਆਪਾਂ काइनेमैटिक्स ਦਾ ਨਾਮ देता। हाँ जी, उन्होंने पास डील करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब इन 1 डायमेंशनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਈ origin ਹੈ, 3 ਐਕਸਿਸ ਆਪਣੀ x y and z, there are 3 coordinate axes। in this point ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ x y z, बट ਇਹਦੀ पोजीशन ਦਾ चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू एक चौथा कोऑर्डिनेट ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ टाइम t विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ टाइम ਦੇ ਨਾਲ चेंज होना, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉडी मूव करती है, एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अपन डील, अपन 3 डेफिनेशन में डील हम कर रहे हैं, डील पोजीशन, पाथ लेंथ, एंड द थर्ड थिंग इज डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, आप किसी रेफरेंस पॉइंट की गल करके हटे हैं, देयर इट इज एनी ऑब्जेक्ट x y z, ਉਹਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ o, ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਸਿੰਪਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਥ ਲੈਂਥ। ਸਪੋਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ b ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਿਆ, C पॉइंट तक ट्रैवल किया। हाँ जी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। पाथ लेंथ की है जी अपना टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ और डिस्टेंस। नाउ सपोज हम A तो B तो C गया, कोई ऑब्जेक्ट पहला A तो B गया, B तो C गया, बट जे अगर A तो डायरेक्ट C चला जाए, हाँ जी कोई बॉडी A तो डायरेक्ट C चली जाए, तो हम क्या कहते हैं जी डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की है जी अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final position। हाँ जी, फाइनल ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥ ਲੈਂਥ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਬਾय एनी ऑब्जेक्ट। टोटल डिस्टेंस जिहड़ा कवर किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने, हाँ जी, इन दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कह सकते हैं। दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सेकंड थिंग, इट इज स्केलर।
स्केलर और वेक्टर अपन नेक्स्ट अपने जेडे अगे चैप्टर आएगा, बट स्केलर की होंदा जिहदा ओनली मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज it is also have direction and magnitude. Third, जो distance है, जो path length है, वो की है जी अपना greater than equal to displacement, greater than equal to displacement. Because देखो कि मैं example, ਜਦੋਂ कोई body straight line ਦੇ ਵਿੱਚ travel कर रही है from A to B गई, कोई बॉडी ए तो बी गई, दैट मींस डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट की होंगे इक्वल होंगे बिकॉज इक्वल लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ। पर नेक्स्ट पॉइंट बी तो ए भी वापस आई। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬॉडी जिस पोजीशन ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ पोजीशन ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ डिस्प्लेसमेंट ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जीरो, बिकॉज इनिशियल पॉइंट भी सेम हो गया, फाइनल पॉइंट भी सेम हो गया, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट की हो गया जीरो। बट डिस्टेंस इज नेवर कैप, कदे भी जीरो नहीं होता डिस्टेंस, सो डिस्टेंस क्यों होएगा ए बी प्लस बी, टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ, दैट मींस डिस्टेंस ऑलवेज क्यों होएगा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। हाँ जी, हम आप डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट कुछ एग्जांपल्स नाल डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट अपना कोई क्वेश्चन है, सपोज कोई बॉडी है ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक की किया उन्हें इन द फॉर्म ऑफ सैमी सर्कल दे विच ट्रैवल किया, ठीक है जी, सैमी सर्कल दे विच ट्रैवल किया। देन सेम एक होर बॉडी ने ए टू बी स्ट्रेट लाइन दे विच ट्रैवल किया। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड displacement when a body travel from A to B in the arc form or in the semicircle form, or same time a body travel radius of the r है जी अपना A to B in a straight line, or so this is a displacement or this is the distance, total distance covered by a body or total path length is called distance, and shortest distance covered by a body is called displacement. So what is the ratio of distance and displacement? So we know that semicircle means to say circumference, total length की होगी, perimeter, perimeter of semicircle is total circle the circumference हो गया जी 2 pi r, so here it is pi r. Now what is the displacement? r, so there is radius r plus r 2r, so the ratio is pi by 2. Clear? From this equation कोई body है a to b travel किया in arc form ਦੇ ਵਿੱਚ and same time A to B travel ਕੀਤਾ shortest distance ਦੇ ਵਿੱਚ displacement ਦੇ ਵਿੱਚ। So what is the ratio of distance and displacement? Distance कितना हुआ जी अपना circumference मतलब perimeter of semicircle pi r, displacement shortest distance मतलब diameter r plus r 2r, r ना r cancel out हो गया जी, अपनी ratio आ गई pi by 2। Now next question, when a body travel 1/4 of the circle, को बॉडी ट्रैवल की ए पॉइंट तो बी पॉइंट दे विच, ठीक है जी। फ्रॉम दिस इक्वेशन आ वाली आर्क तो ने ट्रैवल किया। हाँ जी, अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना मींस टू से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। अपने को रेडियस गिवन है आर, वी नो दैट आर गिवन, दिस इज आल्सो आर, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, base perpendicular, hypotenuse. So according to Pythagoras theorem, AB square is equals to R square plus R square. हाँ जी, क्या आ गया अपने को 2R square और AB कितना आ गया अपने को root of 2R. So this is the shortest distance between A and B. After distance and displacement, now we will discuss or move with the two things, speed and velocity. Speed and velocity. Speed की, it is a distance upon time, simply कह सकते हैं।
ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, the rate of change of distance with respect to time is called speed, distance upon time. But what is velocity? So velocity is rate of change of displacement, rate of change of displacement with respect to time is called velocity. So velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. Now again velocity can be zero because displacement zero हो सकती है कदों ਜਦੋਂ कोई body एक point ਤੋਂ travel करके और again ਉਸੇ point ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜੇ return ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ displacement zero ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ velocity ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ zero ਹੋ ਜਾਏਗੀ but speed ਕਦੇ ਵੀ zero ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ because distance ਕਦੇ zero ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਇਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। एवरेज मीन टू से मीन मतलब सपोज कोई बॉडी है इथों स्टार्ट हुई ए पॉइंट तो हाँ जी बी पॉइंट तक गई बट उन्हें हाफ पार्ट या 1/3 पार्ट था 20 दी या किसी v1 स्पीड नाल ट्रैवल किया नैक्सट हाफ पार्ट उन्हें v2 स्पीड नाल ट्रैवल किया तो आप सिंपल जी गल की हुण भी थोड़ी एवरेज स्पीड कितनी सी तो इनू एवरेज फाइंड करने सिंपल आप नहीं कर सकते भी v1 plus v2 divided by 2 is average speed. No. So we have to find the average speed. The average speed is total distance over total time taken. Clear? Average speed is total distance upon total time. Similarly, average velocity is also total displacement over total time. Displacement तो पता ही है घट वध सकती है बट जी एवरेज स्पीड है वो की रहेगी डिस्टेंस के नाल ट्रैवल करेगी। हाँ जी आप दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हाँ जी हम आप डिस्कस करते हैं एवरेज वेलोसिटी ते एवरेज स्पीड दे नाल न्यूमेरिकल दे नाल। अ गर्ल वॉक्स 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट कहंदा कोई गर्ल है वो 2 मीटर गई ईस्ट वाल इन 2 सेकंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ देन 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट वापस अगेन आई 3 मीटर कर लो हाँ जी a girl walks 3 meter towards east in 2 seconds and then 2 meter towards west in 3 seconds। हाँ जी गर्ल की है towards गई 3 मीटर ईस्ट वाल 2 सेकंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 मीटर वेस्ट वाल गई 3 सेकंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ। Now find average speed and average velocity. Firstly, average speed. जी एवरेज स्पीड के सब तो पहले देखो बॉडी की जा रही है ईस्ट वाल जा रही है कितने डिस्टेंस गई 3 मीटर कितने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ 3 सेकंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ then रिटर्न आई कितने डिस्टेंस 2 मीटर कितने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ 3 सेकंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 सेकंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਗਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਆਪਾਂ फाइंड करनी है एवरेज स्पीड सब तो पहला तो सब तो पहला एवरेज स्पीड की होगी टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ ओवर टोटल टाइम। हाँ जी टोटल डिस्टेंस कितना होया 3 मीटर प्लस 2 मीटर 5 मीटर एंड टाइम कितना होया 5 सेकंड तो स्पीड कितनी आई 1 मीटर पर सेकंड। फॉर नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी वास्ते गल करते हैं पर डिस्प्लेसमेंट दी डिस्प्लेसमेंट की है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो अपना फाइनल पॉइंट की हो गया सी तो आ वाला डिस्टेंस लेना टोटल 3c 2 मीटर आ कितना हो गया 1 मीटर डिस्टेंस ठीक है जी। तो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी टाइम कितना अपने को टाइम टोटल लगेगा 3 और 2 5 सेकंड तो अपने को आ गया 1/5 मीटर पर सेकंड। ये की आ गई थोड़ी एवरेज वेलोसिटी आ गई वो की आ गई थोड़े को एवरेज स्पीड आ गई। डिस्प्लेसमेंट कितनी आई सी 1 मीटर डिस्टेंस कितना सीगा 5 मीटर। एक ही हो गया डिफरेंस हो गया थोड़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड स्पीड देना। नाउ अ बॉडी
travel A to B in with v1 velocity, v1 velocity ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ and returns to B with v2 velocity. Find its average speed and velocity. ਹੁਣ ਦੇਖੋ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ बॉडी है A पॉइंट तो B पॉइंट तक गया कितनी वेलोसिटी नाल, v1 वेलोसिटी नाल। सिमिलरली कोई बॉडी है हाँ जी ट्रैवल किया B2 वापस A दे नाल कितनी वेलोसिटी नाल, v2 नाल। पहली थिंग डिस्प्लेसमेंट की होगी अपनी जीरो, बिकॉज अ बॉडी की आ गई अपनी सेम पोजीशन से वापस आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी की होगी थोड़ी जीरो होगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो फाइंड करना होना आप एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की है जी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सब तो पहला डिस्टेंस कितना होएगा जी, d1 डिस्टेंस कर लो। सपोज है कि टाइम t1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ है, टाइम t2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ है, तो d1 डिस्टेंस कितना होया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। स्पीड इज इक्वल्स टू, we know that speed is equal to distance upon time and distance is equal to speed multiply time। तो अपने को आ गया v1 into t1। फर्स्ट वास्ते कितना आ गया जी अपना v1 into t1 प्लस सेकंड वास्ते कितना आ गया v2 into t2 अपॉन दे विच कितना आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ t1 प्लस t2। एक मिनट हजे आप गल की भी बॉडी जी है ए तो बी जा रही है v1 स्पीड के नाल और b टू a आ रही है सेम डिस्टेंस दे विच v2 कहंदा इत्थे टाइम कितना सपोज कर लिया t1, इधर जेड़ा टाइम लग रहा है t2। डिस्टेंस दोनों दा की है सेम फ्रॉम, तो t1 कितना आ गया जी अपना डिस्टेंस। टाइम हुंदा अपना स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड सेकंड टाइम इज डिस्टेंस अपॉन v2। क्लियर। तो एवरेज स्पीड की होगी अपनी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा अपना d प्लस डी, क्योंकि डिस्टेंस अपना सेम मान के चल रहे हैं। सपोज d है तो d ही गया d आया, d प्लस डी। टोटल टाइम कितना होगा जी t1 प्लस t2, d प्लस डी अपॉन t1 प्लस t2। हाँ जी वैल्यू पुट कर देंगे आप d प्लस डी अपॉन, तो कितना आ गया अपने को d बाय v1 d बाय v2। क्लियर। ऊपरों भी कॉमन हो गया जी d, नीचे भी कॉमन हो गया d, तो अपने को आ गया d इंटू 2 अपॉन d 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। d ना d की हो गया जी कैंसिल आउट हो गया। हाँ जी हाँ जी देखो क्या आना, d ना d कैंसिल हो गया, v1 v2 तो एलसीएम कितना आया नीचे, एलसीएम आ गया अपने को v1 v2 अपॉन दे विच क्या आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ v1 plus v2 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो अपने को कितना बनया 2v1 v2 अपॉन v1 plus v2। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी व्हेन ट्रैवल फ्रॉम a to b with the speed v1 and after that with the speed v2, so average velocity is 0 and average speed is 2v1 v2 upon v1 plus v2। कितना किया ਆਪਾਂ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस सेम है अपना d plus d, टाइम ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ t1 ਨੂੰ ਜੀ। t1 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਜੀ d by v1 ਤੇ t2 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ d by v2। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ d ਨਾਲ d ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। एलसीएम लेके अपने को सॉल्व हो गया गया 2v1 v2 v1 plus v2। एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड कदे भी जे अपन मीन की गल करिए इदा नहीं होएगी v1 plus v2 डिवाइड बाय 2। ये अपना रॉन्ग है। तो हम इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। देखो जी एक मिनट। हाँ जी ना तो सेम क्वेश्चन ही है अपना, बस वैल्यूज आ गई अपने को वेलोसिटी द स्पीड दी 40 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड। तो देखो एवरेज स्पीड की होगी फिर अपनी हुनी आप फार्मूला क्रिएट होया अपने को 2v1 v2 v1 प्लस v2। तो पुट कर दो 2 into 40 into 50 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 50।
तो अपने को सॉल्व हो क्या आ गया जी, नीचे आ गया 90, 2 इंटू 40 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 90, 0 ना 0 कैंसिल, तो अपने को हो गया सॉल्व 5 4 20, 20 इंटू 2 400, ठीक है जी, अपॉन 9। एक भी आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एवरेज स्पीड आ गई 400 अपॉन 9। एंड सॉल्व कर लो, 9 4 दा 36, 40, 9 4 दा अगेन 36, 44.44 मीटर पर सेकंड की आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एवरेज स्पीड आ गई। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ A ਤੋਂ B ट्रैवल ਕੀਤੀ 40 मीटर पर सेकंड ਦੀ स्पीड ਨਾਲ एंड B to A ਆਇਆ 50 मीटर पर सेकंड ਦੀ। ਇਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ इंस्टेंटेनियस स्पीड ਜਾਂ वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ वेलोसिटी ਜਾਂ स्पीड ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ਜਾਂ स्पीड। ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੋਡੀ मूव ਕੀਤੀ 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ट्रैवल कर रही है, डायरेक्ट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ 35 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज वेरी स्मॉल एंड डिनोटेड बाय डेल्टा टी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt और आल्सो रिटन एज लिमिट t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इन्हों पर डिनोट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। नेक्स्ट आ गया जी अपनी टाइप्स मोशन दी, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन की है व्हेन अ बॉडी ट्रैवल विद इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कदों कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज पहला 1 किलोमीटर कवर किया उन्हें 1 आवर, नेक्स्ट सेकंड किलोमीटर कवर किया उन्हें 1 आवर, नेक्स्ट अगले आवर 3 किलोमीटर 3 आवर, 4 किलोमीटर 4 आवर। दैट मीन्स जी बॉडी है, देखो डिफरेंस कितना है 1 1 का, here also the difference is 1 मतलब 1 किलोमीटर वो एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ट्रैवल कर रही है, मतलब इक्वल स्पीड ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ट्रैवल कर रही है बॉडी। दैट मींस वो ਕਿਹੜਾ मोशन हो गया यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। तो फिर ग्राफिकली ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ स्पीड टाइम। सो 1 2 3 4 5 1 2 4 हाँ जी 1 जो किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया डिस्टेंस जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो एक घंटे में। नेक्स्ट किन्ने 2 आवर्स, नेक्स्ट 3 तो जेड़ा ग्राफ बनेगा बिल्कुल की बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है जी। यूनिफॉर्म मोशन की है जो कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे विच उन्होंने कहने आप यूनिफॉर्म मोशन एंड द स्ट्रेट लाइन इज द ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाम तो पता लग रहा है नॉन यूनिफॉर्म मतलब ऑपोजिट टू द यूनिफॉर्म मोशन। मींस टू से जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे नॉट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ਜਾਂ इक्वल डिस्टेंस। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपली अपन इजीली कंसीडर अंडरस्टैंड हो रहा है जेड़ा यूनिफॉर्म मोशन दा ऑपोजिट मींस टू से इट इज डिफाइंड एज a body covered unequal distance in equal interval of time। मतलब कोई बॉडी जो कवर करेगी अनइक्वल डिस्टेंस मतलब हर टाइम ते अलग डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज पहला 1 किलोमीटर कवर किया 1 आवर दे विच, नेक्स्ट आवर दे विच उन्हें 3 किलोमीटर कवर करता, नेक्स्ट आवर दे विच 7 किलोमीटर कवर करता, नेक्स्ट 1 आवर दे विच 9 किलोमीटर कवर करता। क्लियर है जी। तो डिफरेंस देखो पहला डिफरेंस 2 दा आया, देन 4 दा, देन अगेन 2 दा। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल दे विच अनइक्वल डिस्टेंस की करना कवर करना तो की कह सकते हैं आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ग्राफिकली देखो जी शो करांगे जी आप डिस्टेंस 1 2 3 4 नेक्स्ट आर आपने पहले घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ अपना डिस्टेंस कितना कवर हुआ 1 किलोमीटर का ग्राफ पॉइंट ਇੱਥੇ आ गया। नेक्स्ट
ਨੈਕਸਟ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ। ਨੈਕਸਟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਐਂਡ 9। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 9। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ। So this is called non-uniform motion and the graph shows the position of distance and time or the speed. It's a distance time graph and non-uniform. It shows the non-uniform motion. Uniform motion always in straight line and the graph shows equal distance in equal interval time, but non-uniform motion is unequal distance in equal interval of time. ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਸਪੀਡ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ। In our next video we will discuss with acceleration and the kinematics equations. So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।